Good morning, students. This is chapter 2nd, People as a Resource of Economics, class 9th, and this is our second class on this chapter. Let us start. Economic activities by men and women. Like Vilas and Sakal, people have been engaged in various activities. We saw that Vilas sold fish and Sakal got a job in the firm. The various activities have been classified into three sectors: primary, secondary, and tertiary. Primary sector includes agriculture, forestry, animal husbandry, fishing, poultry farming, mining, and quarrying. Manufacturing is included in the secondary sector. Trade, transport, communication, banking, education, health, tourism, services, insurance, etc. are included in the tertiary sector. The activities in this sector result in the production of goods and services. These activities add value to the national income. These activities are called economic activities. Economic activities have two parts: market activities and non-market activities. Market activities involve remuneration to anyone who performs activity performed for pay or profit. These include production of goods or services, including government service. Non-market activities are the production for self-consumption. These can be for consumption and processing of primary product and own account production of fixed assets. जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में समझा था कि व्यक्तियों को भी संसाधन या ह्यूमन रिसोर्स कहा जाता है, और जो ट्रेनिंग है, शिक्षा है और जो हेल्थ है, ये तीनों चीज़ें व्यक्ति को ह्यूमन रिसोर्स बनाती हैं, बेहतर ह्यूमन रिसोर्स, सुपीरियर ह्यूमन रिसोर्स बनाती हैं। यहाँ हम सकल और विलास की कहानी हम लोगों ने पढ़ी थी। उनके माध्यम से हम समझेंगे कि अलग अलग तरह की गतिविधियां होती हैं समाज में। पहली है प्राइमरी सेक्टर, जिसमें कृषि आती है, फिशिंग भी इसी में आती है, पोल्ट्री फार्मिंग भी इसी में आती है। दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर, उसमें इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग आएगी। तीसरा है टर्शरी सेक्टर, तृतीय क्षेत्र, जिसमें व्यापार, यातायात, संचार, बैंकिंग, शिक्षा, पर्यटन, स्वास्थ्य सेवाएं, बीमा आदि आती हैं। अगर सीधे शब्दों में हम समझें तो हम समझेंगे कि खेत से गेहूं पैदा करना प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटी है। गेहूं से आटा बनाना, गेहूं का आटा बनाना सेकेंडरी सेक्टर की एक्टिविटी है।
और आटे के बने जो बिस्किट्स हैं उनको बाजार तक ले जाना टर्सरी सेक्टर की एक्टिविटी है। टर्सरी सेक्टर, तृतीय क्षेत्र, पहले दो क्षेत्र प्राइमरी और सेकेंडरी को सपोर्ट करता है। तो यहाँ हम बात कर रहे थे विलास और शकल की। विलास की माँ जो फिशिंग करती है वो सेकेंडरी सेक्टर से जुड़ी हुई है, और शकल जो पढ़ा लिखा है, ट्रेंड है और प्राइवेट फर्म में काम भी करता है, वो सर्विस सेक्टर से जुड़ा हुआ है। इन तीनों तरह की गतिविधियों को आगे दो भागों में बांटा गया है, मार्केट एक्टिविटीज़ और नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। मार्केट एक्टिविटीज़ तो वो गतिविधियां हैं, वो एक्टिविटीज़ हैं, वो कार्य हैं जिनके परिणाम स्वरूप आपको पेमेंट मिलती है, आपको मेहनताना मिलता है आपको, जबकि नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ में ऐसा नहीं होता। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो मार्केट एक्टिविटीज़ और जो नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ हैं दोनों इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी सेक्टर में होने वाली एक्टिविटीज़ को हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कह सकते हैं, और मार्केट एक्टिविटीज़ राष्ट्रीय आय को बढ़ाने में, उसमें योगदान देने में सहायक होती है। ड्यू टू हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रीजन्स देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन मैन एंड वुमेन इन द फैमिली। वुमेन generally look after domestic chores and men work in the fields. Shakal's mother, Sheila, cooks food, cleans utensils, washes clothes, cleans the house, and looks after her children. Shakal's father, Buta, cultivates the field, sells the produce in the market, and earns money for the family. Sheila is not paid for the services delivered for upbringing of the family. Buta earns money which he spends on rearing his family. Women are not paid for their service delivered in the family. The household work done by women is not recognized as the national income. Geeta, mother of Vilas, earns an income by selling fish. Thus women are paid for their work when they enter the labor market. Their earning, like that of their male counterpart, is determined on the basis of education, and education helps individual to make better use of economic opportunities available before him. Education and skill are the major determinants of the earning of any individual in the market. A majority of women have meager education and low skill formation. People are paid low compared to men. Women are paid low compared to men. Most women work where job security is not there. Various activities relating to legal protection is meager. Employment in this sector is characterized by irregular and low income. In this sector, there is an absence of basic facilities like maternity leave, child care, and other social security systems. However, women with high education and skill formation are paid at par with the men. Among the organized sector, teaching and medicine attract them the most. Some women have entered administrative and other services, including jobs that need high levels of scientific and technological competence. Ask your sister or your classmate what she would like to take up as career. ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से मजदूरी का पुरुष और महिला के बीच में बंटवारा हो गया है, जहां महिलाएं घर पे काम करती हैं, हाउस वाइफ होती हैं, हाउस होल्ड वर्क करती हैं, पुरुष
घर के बाहर फील्ड में काम करते हैं। उदाहरण के लिए जहाँ शकल की मदर शीला एक हाउसवाइफ है, शकल का पिता बूटा सिंह खेत में काम करता है और परिवार का भरण पोषण करता है। लेकिन शीला के द्वारा किया गया जो काम है, जो सेवा है, जो सर्विस है, परिवार के लिए बच्चों को बड़ा करने की जिम्मेदारी है, घर का काम है, उसके बदले उसको मेहनताना, उसको सैलरी, उसको पेमेंट नहीं मिलती। जबकि बूटा सिंह घर के बाहर काम करता है, वो पैसा कमाता है, उसको पेमेंट मिलती है। तो उसकी जो पेमेंट है, उसकी जो इनकम है, वो राष्ट्रीय आय में जुड़ती है। जबकि औरत का जो काम है, महिला का जो काम है, जो घर पे रहते हुए जो काम करना है, वो राष्ट्रीय आय में दर्ज नहीं होता। इसी तरह से गीता, विलास की माँ, मछली बेचती है। वो एक तरह से पुरुषों के क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी है और उसको अपने काम के बदले पेमेंट मिलती है, जिससे वो अपने परिवार का भरण पोषण करती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जब महिला लेबर मार्केट में एंटर करती है और जो वो काम करती है घर से बाहर, तो उसको उसके काम के बदले पेमेंट मिलती है। इसके अलावा शिक्षा और प्रशिक्षण, निपुणता, दो ऐसी चीजें हैं जो एक व्यक्ति को बेहतर ह्यूमन रिसोर्स बनाने में ही नहीं, बल्कि अच्छी आर्थिक अवसर प्रदान करने में भी सहायता प्रदान करती है। अधिकतर औरतें नाम मात्र पढ़ी लिखी हैं और प्रशिक्षित नहीं हैं, इसलिए उनको हम देखते हैं कि पुरुषों के मुकाबले उनको कम वेतन मिलता है और वो ऐसे क्षेत्र में काम करती हैं जहां जॉब सिक्योरिटी नहीं है, जहां उनको इरेगुलर मेहनताना मिलता है और कम इनकम उनकी होती है। उनको मातृत्व छुट्टी जैसी सुविधा, चाइल्ड केयर जैसी सुविधा नहीं मिल पाती। लेकिन हम क्या देखते हैं, समय के साथ साथ बदलाव आया है। अब औरतें शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त कर पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं और शिक्षा और चिकित्सा क्षेत्र उनको सबसे ज़्यादा आकर्षित करते हैं। इसके अलावा बहुत पढ़ी लिखी महिलाएं, हाई लेवल ऑफ साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी कॉम्पिटेंस वाले महिलाएं प्रशासनिक सेवाओं में भी आ रही हैं। थैंक्स।